अल्टीमेटम जो उनकी तरफ से दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और बड़ा क्लियरली ये हाल ही में 2 दिन में तो बड़ा बार बार इसके ऊपर फोर्सफुली कहा गया है कि ये लास्ट है, इसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, और अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता तो संगीन नताइज होंगे। ओवरऑल आप कैसा देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? जी, ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप दो चार चीज़ों को निकाल दें तो देयर इज़ नथिंग न्यू। हमें वही बार बार मिलने को मिला कि कल 8 बजे तक का टाइम है, और उसके बाद जो है अपना प्रेसिडेंट साहब को ग्रीनलैंड चाहिए था जो इनको नहीं मिला। ही क्लेम दैट ही वाज अ बिजनेसमैन बिफोर ही इज द प्रेसिडेंट, which we already figured that out. Everybody, he calculate everything in terms of money. He conquered Venezuela. He wanted to be the president of Venezuela one day. He wants to collect the toll from the state of Hormuz. This is all, and Germany is not somebody who you need to talk to. They will, they will not keep the secrets. So this is in a New York Times is got lost their circulation. This is all we learned from this, over 30-40 minute press conferences, that nothing new other than that 8 o'clock tomorrow is the deadline. And yes, we all understand the communication is happening. We all understand they are negotiating, but like I don't think it's going to finish by 8 o'clock tomorrow. Will be another deadline, because I think these conversations, these negotiations are very meaningful and they are getting somewhere. But when you put the time strain like that, then the other side can, do the similar hard-headedness, and then it could really go back to kind of like few days behind. But I believe by tomorrow, 8 o'clock, he will give another time frame, or he may say that we are very close, and let's see and watch. And but seems like there is a legitimate conversation. There is a legitimate negotiation. I think they are getting close. I mean, like Iran doesn't want to do a ceasefire unless they have, the guarantee. And U.S. on the other end wants, like the Strait of ताहिर Hormuz साहब, to जिस be तरह open. The first से thing. एज यूर सेइंग कि कल का दिन होगा और फिर दिल जस्ट अगेन गिव अ टाइम लिमिट अगेन वंस अगेन, जिस तरह से वो कर रहे हैं के बाद एक टाइम उनकी तरफ से दे दिया जाता है. So as they're continuously attacking on the civilians of the Iran, so do you really think this is against the rule of the war which is happening in the world right now? So where all the institutions which are handling the United Nations, further institutions which are handling with the human rights and everything else? I don't, honestly speaking, when we hear President Trump and when he speak, आप कुछ भी अंदाजा कर सकते हैं कि tomorrow morning he can do anything. But he is dealing with he's the most unpopular president today, and he doesn't want to lose the popularity more. So I think he will think several times before he will commit more, the war crimes, because they already got so many cases against him in this country, and he will have a very hard time after he leave as a president, and then he will face so many consequences. And right now, I don't think he has the capacity or he has the position to take more illegal actions. That's why he's more frustrated to complete these negotiations, and he wants to get it done as soon as possible. I believe if Iran play a smart role, they can have a better deal. But Iran has to really kind of like show the flexibility, where maybe in terms and in parts we can get to some acceptable position for everybody. And I believe I have strong feeling that may not by 8 o'clock tomorrow, but this week they will get to some terms. And I think President Trump is very frustrated to get something done. He wanna walk back, kind of like with little pride. And I think he will be flexible. And all these 8 o'clock tomorrow, whatever as much we heard, I don't think it's going to be that hard. 8 फाइन, o'clock tomorrow. सही. आई रिक्वेस्ट ताहिर साहब कि आप हमारे साथ रहें ब्रेक के बाद भी. वी हैव जस्ट द टाइम टू टेक अ ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी ज्वाइन करेंगे इस दफ़ाई दफ़ाकार. तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस मौजू के ऊपर मज़ीद में बात करते हैं.
बात हो रही है अमेरिका ईरान इसराइल जंग के हवाले से, तो कुछ ही लम्हों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जो टाइम हमने दिया है वो आखिरी टाइम है, इसके बाद हम कोई टाइम नहीं देंगे और इसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और जो जौहरी तनसीबात हैं वहाँ पर ईरान में हमला करेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब, आपने वक्त निकाला एक न्यूज़ के लिए। आबिद लतीफ़ साहब, कहिएगा कल का दिन क्या वाकई में ख़ास होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये जो धमकियाँ हैं या जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उनमें कुछ प्रैक्टिकलिटी हमें नज़र आएगी? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, वो क्योंकि ऑलमोस्ट ये 3 दिनों में तीसरी दफ़ा वो जो धमकियां आप कह लें या जो उनके कंजेक्चर्स हैं, जो अनकंक्लूडेड कंजेक्चर्स होते हैं, वो रिपीट कर चुके हैं। और अभी जो उन्होंने स्पीच की, जो उनकी अभी नशर हो रही थी, उसमें तो वो बहुत एम्फेसिस के साथ ये बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इसमें एक पहली दफ़ा वो बात की है जो उन्होंने पहले कभी नहीं की, और उन्होंने ईरान की इन अ वे ओब्लिक तारीफ करते कहा है कि ईरान जो है वो सीरियस है नेगोशिएशंस के लिए। सो इससे उम्मीद जाहिर होती है कि शायद कहीं पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें शायद कल जो है या आने वाले टाइम के अंदर बहुत सून ईरान जो है वो किसी किस्म का उसकी तरफ से या इस जो कन्फ्लिक्ट है इसमें कोई जैसे कहा भी जा रहा था आज दिन को कि शायद 45 डेज़ का जो है इसमें सीज़ फायर हो जाएगा, और उस दौरान में 45 डेज़ के कुछ मामला जो है वो हल कर लिए जाएंगे। दूसरा, उनकी जो स्पीच थी वो उसके अंदर अगेन उन्होंने अपने दोस्तों का जिक्र किया कि जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया है। जापान का जिक्र किया कि 45,000 ट्रुप्स हैं वहाँ पे अमेरिकन, हमने उनको नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन जापान नेवर नेवर केम होल हॉग विद अमेरिकन। साउथ कोरिया का जिक्र किया उन्होंने, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, और फिर नेटो का भी जिक्र किया कि नेटो इज़ अ पेपर टाइगर। तो हालांकि नेटो जो है वो एक ऑफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक ऑफेंसिव बॉडी नहीं है मिलिट्री। नेटो एक डिफेंसिव बॉडी है जिसके एम्स बहुत क्लियर हैं कि जब उसके ऊपर या यूरोप में कहीं पे अटैक होगा तो तब ये फोर्स एक्टिवेट होगी, तब वो नेटो चार्टर एक्टिवेट होता है। खैर एनीवे, इसी तरह आपने देखा अफगानिस्तान में भी जब इन्होंने नेटो फोर्सेस को वहाँ पे रखा था तो हर ऑलमोस्ट नेटो कंट्री की जो तादाद थी ट्रुप्स की वो बहुत कम थी। किसी के 50 लोग थे, किसी के 100 लोग थे, किसी के 10 लोग थे। ओवरवेलमिंगली इट वाज अमेरिकन। सो एनीवे, ये जो उनकी स्पीच थी जी, वो अगेन उन्होंने ईरान को फिर वो धमकियां भी दी जो वो देते हैं कि अगर डेडलाइन के ख़त्म होने तक जो है वो नेगोशिएशंस ना की गई तो सारे जो ग्रिड स्टेशन हैं, पावर स्ट्रक्चर्स हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, वो उड़ा दिया जाएगा। फिर उन्होंने ब्रिजेस का भी कहा, कनेक्टिविटी का भी, और फिर वो जो बात करते हैं अपनी ग्रैंड्योर की, और जिसमें वो बताते हैं जिस तरीके से कि मैंने किस तरीके से दुनिया के सारे कन्फ्लिक्ट ख़त्म किए। फिर पाकिस्तान और इंडिया के कन्फ्लिक्ट का भी जिक्र किया। सो एक तरह से वही उनकी रेपुटेशंस थी। अगर आप देखें तो उनके पुराने आप पिछले 4 महीने के ट्वीट्स उठा लें और उसको इस 5 हफ्तों के जो ट्वीट्स हैं ईरान कन्फ्लिक्ट के, उनके साथ अगर अमलगमेट कर लें तो वही सारे ट्वीट्स थे जो वो रिपीट हुए थे जी। लेकिन क्योंकि ही इज़ अ सुप्रीम कमांडर, इस वक्त एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, तो डेफिनेटली ही हैज़ हिज थंब ऑन द बटन्स। तो वो जाहिर है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उनके ऑर्डर्स जाहिर है किसी भी तरह से कंप्लाई होंगे। लेकिन जो कंफ्यूजन है वॉर की, या जो आप कह लीजिए कि जो इस कन्फ्लिक्ट की कम्प्लेक्सिटी है, वो जाहिर है कि इन ब्रीफिंग से, इन स्पीचेस से हल नहीं होगी। उसके लिए तो कंक्रीट काम करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पहली दफ़ा जो उनका कल जो ट्वीट था जो कि बहुत ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में लिखा गया था, उसके बाद आज उनका जो कंपोजर था वो आई थिंक काफ़ी उसकी निस्बत काफ़ी फ़र्क था। और उसमें जो ईरान के में ये कहना, तो आई थिंक एक उम्मीद की छोटी सी किरण पैदा होती है जी। सही। ताहिर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही टॉक्ड अबाउट द रिजीम चेंज एंड ही वाज एम्फसाइजिंग द ईरानी पीपल टू स्टैंड अप अगेंस्ट अ रिजीम। तो वाज इट रियली फॉर द रिजीम चेंज? जितनी भी वॉर हो चुकी है, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, क्योंकि कभी वो तेल की बात करते हैं, कभी वो रिजीम चेंज की बात करते हैं, कभी जौहरी तनसीबात की बात करते हैं।
देखिए रजीम चेंज का अगर था भी तो उन्होंने खुद ही क्लेम कर लिया जी कि मैंने रजीम चेंज तो कर दी है। तो जी। बहरहाल देखें ओरिजिनली इनका रजीम चेंज का तो था प्लान। आई मीन जो हुँ, मर्जी हम बोल दें कि इनका कॉन्सेप्ट यही था कि जी हम वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी सी मारामारी करेंगे, लोग सड़कों पे निकल आएंगे और लोग खुद ब खुद रजीम को चेंज कर लेंगे, जो बहुत सारी जगह पे कभी कभी हुआ भी है ऐसे। लेकिन दे फॉरगॉट कि भी ईरानियन जो नेशन है वो यानी हमले के बाद वो यूनाइट हो गई और उन्होंने कोई बंदा सड़क पे नहीं आया। अगर कोई इल फीलिंग्स किसी जगह पे है भी तो किसी ने कोई प्रोटेस्ट आकर नहीं किया। तो हुँ, इनका इरादा तो रजीम चेंज का था। अब वो हुई तो नहीं इनसे रजीम चेंज। ये थोड़ी होती है कि एक आदमी को चेंज कर दे, और ये भी सही। साबित कर दिया ईरान ने कि ये हमारे एक बंदे को चेंज करने से रजीम चेंज नहीं होगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो उन्होंने साबित किया, आप उसका 100 बंदा भी चेंज कर दें, जो बेसिकली लीडरशिप सारी इन्होंने जो पुरानी थी उसको एलिमिनेट किया, लेकिन रजीम फिर भी और चेंज नहीं रिजीम हुई।